Today it gives me great pleasure to wish. I was the first one to wish him already, 1 week ahead. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. Not a coincidence also, the father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon, because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the Global South. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British-Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. आज भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां साल पूर्ण करके 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। उनके इस जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में जो प्रोग्राम गठित किए गए हैं उसे मुताबिक हमारा मोदी समाज भी पीछे रहना नहीं चाहता और आज अहमदाबाद मोदी समाज के युवाओं ने 16 सिविल में फ्रूट वितरण का प्रोग्राम रखा है। आज इस अवसर पर परिवार के नाते मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि बड़े भाई को लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे और राष्ट्र के लिए उन्होंने जो समर्पितता बताई है उसमें वो आगे बढ़ते रहें और देश का विकास करते रहें। धन्यवाद। आज संपूर्ण देश आनंद से भरा हुआ है, जैसे पूरे देश में उत्सव हो। आज भारत के हमारे 140 करोड़ नागरिक अपने प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु की कामनाएं कर रहे हैं। कहीं मंदिर में प्रार्थना हो रही, कहीं रक्तदान शिविर लग रहे हैं, कहीं स्वच्छता के कार्यक्रम हैं, तो कहीं अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है, तो कहीं वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। उनके जन्मदिन को शाब्दिक बधाई से नहीं मनाया जा सकता।
निरंतर कर्म भी उनका धर्म है। तो जन्मदिन मनाना है तो कुछ करके मनाओ। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। ICAR के सारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा में इकट्ठा है और देश में अनेकों विध अभियान सेवा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। वो शतायु हों, दीर्घायु हों और नेतृत्व करते रहें। जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं, एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। और नरेंद्र मोदी आज देश में, अगर मैं कहूं तो शायद ये लोग क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता। जो कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा लूंगा, तो कृष्ण की छवि के विषय में तो नहीं कि मोदी जी सुदर्शन चक्र लिए हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं। और खास करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको परास्त कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये मोदी जी एक अवतारित पुरुष के रूप में हैं, न कि नरेंद्र मोदी नाम है। और ये मुझे लगता है कि वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मोदी जी उसी रूप में आए हैं। मोदी जी के फॉलोअर्स हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं। मोदी जी आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी का जीवन, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है, जिन्होंने इस दुनिया की रचना की। और आदरणीय मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने का काम इन 11 वर्षों में किया है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, गरीब के प्रति संकल्पित, देश के विकास को लेकर के जज्बा, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत को पूरी दुनिया में एक बड़ा सम्मान दिलवाने का काम किया है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से जहां बधाई देता हूं, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और वो दीर्घायु हो और मजबूत भारत के निर्माण में निरंतर उनकी सेवाएं वो रहे, ताकि गरीब के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, महिला के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, आदरणीय मोदी जी का ये संकल्प है। और आदरणीय मोदी जी ने ये एक थीम हमें दिया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि अगर नारी स्वस्थ होगी तो ये परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तो ये प्रदेश और राष्ट्र सशक्त और मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस के ऊपर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम इस थीम के निमित्त चला। अभय नामक प्रवक्ता उनके हैं जिनके माध्यम से एक पत्र जारी हुआ है
पत्र 15 अगस्त 2025 का है। अगर उस समय यह मनोभाव उनका बना होता कि हम किसी तरह से संघर्ष के विराम को करके और शांति की वार्ता करते हैं, तो फिर हमारे शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों अनेक आईडी ब्लास्ट हुए, यह एक प्रश्न है। साथ ही साथ यह है कि फॉर्मेट में भी काफ़ी चेंज है, फोटो का होना, शब्दावली का परिवर्तन होना, साथ ही साथ ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी आदि आदि इसमें उल्लेखित होना, यह भी परिवर्तन का विषय है। जो भी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से इस विषय को कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने मार्गदर्शन सबका इस तरह से किया कि आज परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं बस्तर में। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्येय सिर्फ एक है, वो ये है कि बस्तर के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के प्रत्येक गांव के रास्ते में बिछे हुए आईडी को दूर होना चाहिए। बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। इस पत्र के माध्यम से अगर ऑथेंटिसिटी पहले चेक करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा, अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो नेतृत्व उस पर अवश्य ही सकारात्मक निर्णय लेगा। यदि ऑथेंटिक नहीं हुआ तब क्या? नहीं हुआ तो जो है सो है, मतलब शांति वार्ता नहीं होगी क्या? ऑथेंटिक ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूं कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा। जो नरेंद्र मोदी सर है, उनका मुझे 2-3 बात ये अच्छा लगता है कि पहली बात तो है कि वो अभी जितने भी सभा में आए, छोटी से छोटी जगह पे गए, तो उनका एक ये खास बात ये है कि वो किसी को भी ना बिना नाम से बुलाते नहीं। वो सबको, जो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबको वो नाम से पुकारते हैं। तो जो आदमी होता है उनको एक अच्छा फील होता है कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर मैं हूँ, कोई भी आदमी, मैं चला जाता हूँ मार्केट में, कहीं भी रोड पे, और मुझे कोई भी छोटा आदमी नाम से बुलाए तो एक मुझे ऐसा मैसेज जाता है कि ये आदमी भी मुझे पहचानता है। बट सर इतनी ऊंचाई पे, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अगर वो कहीं भी जाते, छोटे गांव में जाते, छोटे लोगों से मिलते, तो भी उनको नाम से बुलाते। तो वो एक उनकी बहुत ही बड़ी बात है कि इतने लोगों से मिलना होता है, देश विदेश में लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है, दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है, उसके बावजूद भी जब भी अगर आप कोई भी आदमी को मिलते और उससे नाम से बुलाते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे उनका और एक पॉइंट ऐसा लगता है कि जो वो उनका विजन है, जैसे कि कभी कभी हमने वो बात सोची नहीं होती है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। हमें लगता है कि ये चीज़ तो असंभव है, कभी पॉसिबल होगी ही नहीं। बट सर का जो विज़न है वो लंबा
आगे का सोच का विजन होता है कि ये चीज मुझे करनी, अगर ये चीज मैंने किया तो देश का और विकास होगा। वो उनका जो विजन है, आगे का विजन, आने वाले 10-15 सालों का विजन है उनका, वो बहुत ही बढ़िया है कि उनको पता है कि मैं अभी कोई भी चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले 10-15 साल में ये चीज का देश के लिए क्या फायदा होगा, वो उनकी बात है, वो बहुत ही बड़ी बात है। First time we met the Honorable Prime Minister, sir, after the World Cup, and we were invited to his residence, and I went with my parents, and we had a very good conversation for about 15-20 minutes, and we didn't feel like we were talking to a prime minister. We felt like we were talking to someone that we knew for a long time. Like we were just like the sir made us comfortable, and we were discussing about my chess, like what about the tournaments, about my training process, and also sir was asking questions to my parents about what they do and my dance profession. So it was a very, very good conversation. Sir also gave some suggestions on things to try out. Overall we had a very good time speaking with sir, and we enjoyed the conversation. मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं, और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं, और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। साई के थ्रू, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के थ्रू जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते आए हैं। काफ़ी सारी विशेष बातचीत है उनके साथ मेरी, क्योंकि उनसे जब भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो सारी विशेष ही होती हैं मेरे लिए। तो पर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे काफ़ी याद है कि मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था, और इन पर्सन पहली बार मैं उनसे जब मिली थी तो काफ़ी वेलकमिंग किस्म के व्यक्ति हैं, और काफ़ी समय देते हैं, अपना आराम से बातचीत करते हैं, उनको सारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपका कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका जज्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से, किसी कंपटीशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader
who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश को, देशवासियों को एक नई इज्जत, एक नई प्रतिष्ठा, एक नई दिशा, एक नया सम्मान दिया है। जितनी भी आपके लिए प्रशंसा की जाए उतना कम है। आपकी पॉलिसीज पाथ ब्रेकिंग रही है। आपका जो विजन है वो हमने इस देश में कभी नहीं देखा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जुग जुग जियो मोदी जी। He's a visionary leader. He used to really take care of the people when they are in the bad times. He encourages the people under his leadership for last 10 years. If you are seeing the space program in India has grown exponentially, very high rate. He has given very good roadmap to create our own space station